Good morning, students. In the last class, we have started a topic that is internal trade. Okay, so in this topic, we have studied what is the meaning of the internal trade, what are the main features of the internal trade. Internal trade means simply buying and selling of goods and services within the geographical boundary. Okay, it is called the internal trade, and we have studied the different features of the internal trade. The first one is the buying and selling of goods and services takes place within a country. ठीक है, within a country ही सारे जो भी goods and services का selling and purchasing होता है. The payment are made and received in the home currency only. Whatever the payment which is made as well as received, it is in the home currency, means Indian rupee. Next one is there are no or very few formalities to be completed by the traders. Okay, so trader have to complete a very few or no formalities when he or she is doing the internal trade. Next one is various local modes of transport can be used for the transfer of goods and services. Okay, there are different kinds or the modes of the transportation through railway or the road as well as from the airway. So from these local modes of transportation, the goods are transferred from one place to another place. Okay, so we have also studied what are the different types of the internal trade, in which we have studied the wholesale trade and the retail trade. Okay, internal trade are of two types, that is wholesale trade and the retail trade. So what we have studied the wholesale trade. Wholesale trade means trade in which goods are sold in the large quantity. Okay, the person who carries these business or the trade, wholesale trade, it is he is called or she called as wholesaler. Okay, so wholesaler buys the goods from the manufacturer in the large quantity and sold it to the retailer in the small quantity. कि वो जो भी होलसेलर होता है वो क्या करता है, जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं गुड्स की उसको वो लार्ज क्वांटिटीज़ में मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करेगा एंड देन उसको सोल्ड किसको कर देगा, वो रिटेलर को कर देगा इन द स्मॉल क्वांटिटीज़. ओके, डिफरेंट स्मॉल क्वांटिटीज़ में वो रिटेलर को सोल्ड आउट करेगा. सो होलसेलर एक्ट एज अ मिडिल मैन बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर. ओके, सो होलसेलर कैसे ट्रीट होता है, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच का एक मिडिल मैन होता है. ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द होलसेल ट्रेड. होलसेल ट्रेड एक्ट एज अ link between the producer and retailer. We have already discussed. Wholesaler deals with the large quantities of goods. Wholesaler is a generally specialized in one line of product. Okay, for example stationery, food grains, medicines, etc. Wholesaler invests large amount of capital in the maintaining stock of goods. Wholesaler generally sell goods in the small lots to the retailer and generally does not sell to the ultimate consumer. Okay, जो wholesaler क्या होते हैं वो goods को small lots में retailer को sold out करते हैं एंड जनरली वो लोग डायरेक्टली कस्टमर और कंज्यूमर के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं. सो द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द होलसेलर इज़ लो. जो प्रॉफिट का मार्जिन होता है होलसेलर का वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है. होलसेलर इज़ द फर्स्ट इंटरमीडियरी इन द डिस्ट्रीब्यूशन chain. Okay, distribution chain is manufacturer, then wholesaler, then retailer, after that consumer. Okay, so for the manufacturer, wholesaler is the first intermediary chain in the distribution channel. Okay, so we have also started a topic that is services of the wholesaler. What are the different services of the wholesaler which is provided to the manufacturer and the retailer, and we all are discussing the services to the manufacturer which is provided by the wholesaler. As we already discussed, the facilitate large scale production and economies of scale, help in marketing function and expert advice. Okay, till here we have already discussed
So in today's class we are going to start with the fourth services to the manufacturer, that is storage. Okay, so let's start. Wholesaler provide facility of the storage of goods by buying the goods in bulk. They relieve the manufacturer from maintaining the stock of goods. Wholesaler take the complete responsibility of storage of goods and bear the risk of theft or spoilage, etc. Okay, wholesaler provide facility of storage of goods. Okay, wholesaler क्या होता है, वो प्रोवाइड क्या करता है, फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, कि गुड्स को स्टोरेज में रखने का, मतलब जो स्टोरेज होता है, वेयर हाउसेज होता है, कोल्ड स्टोरेज होता है, उसको क्या है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है बाय बाइंग द गुड्स इन बल्क. ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर से क्या करता है, बल्क अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में गुड्स को परचेज कर लेता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और उसको वो स्टोरेज में कीप सेफली वो रख देता है. दे रिलीव द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम मेंटेनिंग द स्टॉक ऑफ गुड्स. ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर जो है, जो कमोडिटी को मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको एक रिलीफ प्रोवाइड करता है फॉर मेंटेनिंग द स्टॉक ऑफ गुड्स, कि अब होलसेलर को क्या करना है, वही क्या करेगा, सारा स्टॉक ऑफ गुड्स को मेंटेन करेगा. अब मैन्युफैक्चरर को कोई स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है. होलसेलर टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स. ओके, होलसेलर क्या करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ले लेता है स्टोर करने के गुड्स को, एंड बेयर द रिस्क ऑफ थेफ्ट और स्पॉइलेज एक्सेट्रा. और ये सारे रिस्क को भी बेयर करता है कि अगर थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए या स्पॉयल हो जाए, पूरे डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसे सारे रिस्क भी कौन लेता है, होलसेलर लेता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल असिस्टेंस. Wholesaler provides financial support to the manufacturer by buying the goods for the cash. Sometimes he pay in advance while placing order. Therefore, manufacturer have to invest minimum capital in their business. Okay, so financial assistance भी provide करता है, financial help भी provide करता है, because wholesaler provide financial support to the manufacturer by buying the goods for cash. ठीक है, wholesaler क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर से सारे गुड्स को क्या है, कैश में ही परचेस कर लेता है. मींस वो क्रेडिट पे नहीं लेता है कि आज वो ले रहा है कल पेमेंट करेगा, नहीं, वो उसको सब कुछ कैश में ही लेता है, उन सारे गुड्स को कैश पेमेंट कर देता है. समटाइम्स ही पेज इन एडवांस वाइल प्लेसिंग ऑर्डर. ठीक है, कभी कभी क्या करता है वो होलसेलर, वो कोई भी गुड्स जो उसको प्लेस करना है, जो उसको लेना है, उसके पहले ही वो उसको क्या करता है, एडवांस पे कर देता है. Therefore, manufacturer have to invest minimum capital in their business. इसलिए क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है, उनको अपना कैपिटल है वो बहुत मिनिमम ही इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि होलसेलर उनको एडवांस में पेमेंट कर देता है, तो मैन्युफैक्चरर उसी अमाउंट को क्या करते हैं, वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज बेयरिंग रिस्क. ओके, बेयरिंग रिस्क. द होलसेलर डील इन गुड्स इन देयर ओन नेम, take delivery of the goods and keep the goods in the large lots in their warehouses. In the process, they bear variety of risks such as risk of fall in prices, theft, spoilage, fire, etc. Okay, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो जो होलसेलर होता है वो क्या करता है, बल्क अमाउंट में सारे गुड्स को परचेज कर लेता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. फिर वो क्या करता है, उनको स्टोरेज जो भी उनके वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड स्टोरेज है, उस पर वो अपना सेफली रख लेता है. बट ऐसा हो सकता है कि होलसेलर क्या करता है, ऐसे बहुत सारे रिस्क को भी बेयर करता है. कैसे रिस्क है कि फॉल इन प्राइसेस, कि जो भी गुड्स वो स्टोरेज में रखा है, मे बी उसकी प्राइस क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी. जब उसकी प्राइस फॉल कर जाएगी तो होलसेलर को लॉस होगा. थेफ्ट हो जाए, मीन्स चोरी हो जाए, वो सारे जो भी उसने प्रोडक्ट रखे हैं. स्पॉइलेज मीन्स सारे जो प्रोडक्ट हैं वो क्या हो जाए, स्पॉयल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, एज वेल एज फायर लग जाए. अगर वहाँ पे जहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी है, वेयर हाउसेज है, वहाँ पे अगर फायर लग गई तो क्या हो जाएगा, पूरा इसका वेस्ट हो जाएगा. मतलब इसलिए क्या है, होलसेलर बहुत ज़्यादा रिस्क को भी बेयर करता है. ओनली फॉर दी मैन्युफैक्चरर. ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़. अभी देखिए, मैन्युफैक्चर तो कमोडिटी प्रोड्यूस कर दिया, अब वो क्या कर दिया, होलसेलर उसे सारा परचेज कर लिया. अब इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किस पे है, होलसेलर पे. तो ऐसी सर्विसेज भी क्या करता है, होलसेलर प्रोवाइड करता है टू दी मैन्युफैक्चरर.
मैन्युफैक्चरर. ओके, सो होलसेलर डील्स इन गुड्स इन देयर ओन नेम. ओके, होलसेलर क्या करता है, ये सारे गुड्स को अपने नेम पे लेता है, मतलब परचेज कर लेता है. एंड टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, उन सारे गुड्स की डिलीवरी करता है. एंड कीप द गुड्स इन लार्ज लॉट्स, ठीक है, उन सारे गुड्स जो भी वो लेता है उनको लार्ज लॉट्स होता है जो उसको अपने पास रखता है इन देयर वेयर हाउसेज, अपने जो भी वेयर हाउसेज होता है जहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी है वहाँ पे वो रखता है. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में दे बेयर वैरायटी ऑफ रिस्क, वो बहुत सारे रिस्क भी जो है उसको भी बेयर करते हैं, सच एज रिस्क ऑफ फॉल इन प्राइसेस, कि प्राइस क्या हो फॉल कर जाए, थेफ्ट हो गया, स्पॉइलेज, फायर एक्सेट्रा. ओके, सो होलसेलर ऑल्सो बेयर द टू मच रिस्क फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑल्सो. So next one is facilitate production continuity. The wholesaler facilitate continuity of production actively throughout the year by purchasing the goods as when they produced and storing them till the time these are demanded by the retailer or customer in the मार्केट. ओके, होलसेलर क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन. होलसेलर किसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, मैन्युफैक्चरर के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर दी कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन, कि वो कंटिन्यूटी क्या करे, प्रोडक्शन करे एक्टिवली थ्रू आउट द ईयर बाय परचेजिंग द गुड्स एज व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड. ओके, और क्या करता है कि एक्टिवली प्रोडक्शन को एक्टिवली वो कंटिन्यूसली करता रहे थ्रू आउट द ईयर, पूरे ईयर, बाय परचेजिंग द गुड्स. ठीक है, और जो होलसेलर होता है वो सारे गुड्स को परचेज करता है. एंड व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड एंड स्टोरिंग देम, वो जब सारे गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जब स्टोर हो जाते हैं, टिल द टाइम दीज आर डिमांडेड बाय द रिटेलर और कस्टमर इन द मार्केट. उन सारे गुड्स को वो क्या करता है, परचेज कर लेता है और स्टोर किया रहता है अनटिल एंड अनलेस वो डिमांड कस्टमर या रिटेलर के थ्रू नहीं किए जा रहे हैं. जब तक डिमांड नहीं किए जा रहे हैं तब तक वो क्या करता है, उन सारे गुड्स को वो स्टोरेज में रख लेता है. ओके, सो ऐसी भी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, होलसेलर टू दी मैन्युफैक्चरर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्विसेज टू दी रिटेलर. till here we have completed the services which is provided to the manufacturer by the wholesaler. Okay, now next topic is services which is provided to the retailers by the wholesaler. So wholesaler render the following services to the retailer. First one is availability of goods. Retailer needs to keep a wide variety of goods to meet the requirement of the various customers. Wholesaler provide them a wide variety of goods in the one line of product. It is very difficult to a retailer to approach different manufacturer directly. Wholesaler perform the task of sorting out and assembling goods from several manufacturers. Wholesaler maintain a large stock of goods. Therefore, whenever retailer require goods, these can be immediately supplied by the warehouse. The retailer need not maintain a large stock. He can get the stock quickly and regularly from the wholesaler. Wholesaler act as a warehouse keeper of the retailer. Okay, so yes, retailer need to keep a variety of product to meet the requirement of various customer. ठीक है, रिटेलर को क्या करना पड़ता है, अपने पास वैरायटी ऑफ गुड्स को क्या करना पड़ता है, कीप करना पड़ता है, रखना पड़ता है टू मीट दी रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस कस्टमर. अलग अलग कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो होगी, उनके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए रिटेलर क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को अपने पास रखते हैं. होलसेलर प्रोवाइड देम अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट. होलसेलर क्या करते हैं, एक ही प्रोडक्ट का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी है, अगर शैम्पू है तो शैम्पू के ही डिफरेंट जितने भी हैं अलग अलग, लॉरियल हो गया, आपका क्लिनिक प्लस हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, एंड सो ऑन, जितने भी हैं, तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वन ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में, मतलब एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट में अगर डिफरेंट अगर मेडिसिन्स है तो मेडिसिन्स में क्या है, हर एक टाइप की मेडिसिन्स क्या कर रहा है, प्रोवाइड करता है. ओके,
So wholesaler provide them a wide variety of goods in one line product. Okay, स्टेशनरी में ही क्या है, पेन, पेंसिल, रबर, कॉपीज़, स्केच पेन्स, कलर्स, ये सारी क्या है, प्रोवाइड करता है कौन, होलसेलर टू रिटेलर. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ रिटेलर टू अप्रोच डिफरेंट मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली. अब ये क्या है, अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है किसी भी रिटेलर के लिए कि वो हर एक मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कांटेक्ट करे. अब क्या जो रिटेलर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट कर दे हर एक मैन्युफैक्चरर से, मीन्स अब वो जाके पहले बोल दे कि जो क्लिनिक प्लस कर रहा है, जिसने क्लिनिक प्लस का प्रोडक्शन किया, उससे जाके बोले कि मुझे शैम्पू चाहिए. फिर जा रहा है वो लॉरियल वाले के पास जा रहा है कि मुझे लॉरियल का शैम्पू चाहिए. फिर वो हेड एंड शोल्डर वाले के पास जा रहा है, फिर वो वाटिका शैम्पू उसके पास जा रहा है. तो ये क्या है, ये बहुत क्वाइट डिफ़िकल्ट हो जाता है होलसेलर के रिटेलर के लिए कि वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से वो क्या करेगा, डायरेक्टली मिलेगा. इन दैट केस होलसेलर परफॉर्म द टास्क ऑफ सॉर्टिंग आउट. इस कंडीशन पे होलसेलर क्या करेगा, किसका टास्क करेगा, सॉर्टिंग आउट का, मीन्स सॉर्ट आउट करेगा एंड असेंबलिंग गुड्स फ्रॉम दी सेवरल मैन्युफैक्चरर. अब होलसेलर क्या करेगा, क्लिनिक प्लस वाले के पास जाएगा, उससे लार्ज अमाउंट में शैम्पू ले लिया, फिर लॉरियल वाले के पास जाएगा, फिर क्लिनिक प्लस वाले के पास. तो अब यहाँ पे होलसेलर का रोल है कि वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा और उनसे गुड्स को लेगा एंड आफ्टर डैट वो रिटेलर को प्रोवाइड कर देगा. ओके, सो देयरफॉर गुड्स असेंबलिंग गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. सो होलसेलर मेंटेन अ लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स. होलसेलर क्या करते हैं, लार्ज स्टॉक का गुड्स को मेंटेन करते हैं. देयरफॉर व्हेनेवर अ रिटेलर रिक्वायर गुड्स दीज कैन बी इमीडिएटली सप्लाइड बाय द वेयर हाउस. ओके, तो होलसेलर क्या करते हैं, लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स को मेंटेन करते हैं. देयरफॉर व्हेनेवर अ रिटेलर रिक्वायर्स गुड्स, ओके, जैसे ही रिटेलर को क्या है, गुड्स की ज़रूरत है, वो क्या करेगा, होलसेलर को कांटेक्ट करेगा कि मुझे अभी यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है, तो मुझे ये गुड्स चाहिए. तब होलसेलर उसको क्या करेगा, वो गुड्स को प्रोवाइड करेगा. ओके, दिस कैन बी इमीडिएटली सप्लाइड फ्रॉम दी वेयर हाउस. वो जो वेयर हाउस में उन प्रोडक्ट को रखा है, वहाँ से वो क्या करेगा, इमीडिएटली उन प्रोडक्ट को सप्लाई कर देगा, किसको, रिटेलर को. सो द रिटेलर नीड नॉट मेंटेन अ लार्ज स्टॉक. इसलिए रिटेलर को कोई नीड नहीं है कि वो लार्ज स्टॉक को क्या करे, मेंटेन करे. ही कैन गेट द गुड्स क्विकली एंड रेगुलरली फ्रॉम दी होलसेलर. वो जो भी गुड्स हैं वो क्विकली, बहुत जल्दी में और रेगुलरली क्या कर सकता है, होलसेलर से फाइंड आउट कर सकता है. होलसेलर एक्ट एज अ वेयर हाउस कीपर ऑफ दी रिटेलर. होलसेलर क्या है, एक्ट कैसे कर रहा है, वेयर हाउस कीपर मीन्स ऑफ द रिटेलर. रिटेलर का वो वेयर हाउस कीपर है, क्योंकि वही क्या करता है, सारे प्रोडक्ट को रख रहा है होलसेलर. इसलिए रिटेलर के लिए वो क्या है, एक एज अ वेयर हाउस कीपर है कि वहाँ पे प्रोडक्ट है. रिटेलर को जब भी उन प्रोडक्ट की नीड होगी, वो क्या करेगा, होलसेलर से बोलेगा. देन होलसेलर अपने वेयर हाउस से उन गुड्स को ले आके रिटेलर को दे देगा. ओके, सो इट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स. नेक्स्ट वन इज grant of credit. Wholesaler sells goods to the retailer on credit. Therefore, retailer need not to maintain large working capital. They can make payment after receiving the payment from the customer. Okay? होलसेलर क्या करता है, सेल गुड्स को रिटेलर ऑन क्रेडिट पे करता है, मीन्स पेमेंट अभी ना करके बाद में करते हैं. सो देयरफॉर रिटेलर नीड नॉट टू मेंटेन लार्ज वर्किंग कैपिटल. इसलिए जो भी डेली एक्सपेंसेस होते हैं लार्ज उसके रिटेलर्स के, उनको मेंटेन करने की उसको ज़रूरत नहीं है. दे कैन मेक पेमेंट आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर. ओके, वो क्या कर सकता है, जो रिटेलर है वो पेमेंट क्या है, आफ्टर भी कर सकता है, जब कस्टमर से उसको पेमेंट मिल जाएगा, मतलब वो अपने प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करेगा कस्टमर को, जब उनसे उनको पेमेंट मिल जाएगा, देन जो फंड मिलेगा वो क्या करेगा, वो होलसेलर को प्रोवाइड कर देगा. इसलिए जो रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर के थ्रू क्रेडिट पे भी परचेस करते हैं. नेक्स्ट वन इज रिस्क शेयरिंग. होलसेलर बेयर द रिस्क ऑफ चेंज इन डिमांड, रिस्क ऑफ डैमेज इन ट्रांजिट, risk of theft of spoilage in warehouse. Retailers are relieved from all such risks as wholesaler bear these risks for retailers. Retailer is saved from the risk associated with the transport or storage of
गुड्स। ओके, होलसेलर क्या करता है, जो भी सारे रिस्क है वही बेयर करता है। चेंज इन डिमांड, की डिमांड क्या है, चेंज हो गई किसी का, पहले वो कोई और प्रोडक्ट को लोग परचेज़ कर रहे थे, लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, अब लोग क्या करें, किसी और प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो ये अगर डिमांड में चेंज हो गई तो हो सकता है कि पहले लोग बहुत ज़्यादा डेयरी मिल्क को डिमांड कर रहे थे, तो वो होलसेलर ने क्या किया, अपने पास डेयरी मिल्क का बहुत ज़्यादा स्टोरेज रख लिया, ठीक है, बहुत सारा लॉट्स रख लिया। बट अब लोगों की डिमांड चेंज होके वो शिफ्ट हो गई किस पे, फ्यूज़ पे हो गई। अब फ्यूज़ पे हो गई तो उसकी डिमांड चेंज, लोगों की कस्टमर की डिमांड चेंज होने पे उसको लॉस हो रहा है, क्योंकि वो तो अपने पास इतना रख लिया था। तो इसलिए क्या होता है, होलसेलर क्या करता है, बहुत ज़्यादा रिस्क को भी बेयर करता है। रिस्क ऑफ डैमेज इन ट्रांजिट, और जो भी डैमेज हो रहा है, ट्रांजिट हो रहा है, मींस गुड्स यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो उसमें जो भी डैमेज होगा वो भी बेयर करता है। रिस्क ऑफ थेफ्ट का भी बेयर करता है। स्पॉयलेज इन वेयर हाउसिंग, कि वेयर हाउस पे रखा है और स्पॉयल हो गया, मींस अगर बारिश हो गई, उसके बारिश का कुछ ड्रॉपलेट्स या पानी आ गया, उससे वो कोई भी प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, या उसमें वेयर हाउस में माउस हो गया, तो उनकी वजह से क्या है, प्रोडक्ट हमारा स्पॉयल हो सकता है होलसेलर का। तो ऐसे रिस्क क्या करता है, होलसेलर बेयर करता है। रिटेलर्स आर रिलीव्ड फ्रॉम ऑल सच रिस्क, जो भी रिटेलर है, ठीक है, रिटेलर वो सारे रिस्क से फ्री होता है, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब होलसेलर की, क्योंकि वही क्या करता है, बल्क अमाउंट में गुड्स को परचेस करता है। होलसेलर बेयर दीज रिस्क फॉर द रिटेलर, ठीक है, होलसेलर क्या करता है, ये सारे रिस्क को बेयर करता है फॉर द रिटेलर्स। रिटेलर्स इज सेव फ्रॉम द रिस्क एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ऑफ गुड्स। ओके, रिटेलर क्या है, रिटेलर सेव्ड है फ्रॉम द रिस्क, सारे रिस्क से, एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हैं, एज वेल एज स्टोरेज ऑफ गुड्स, की स्टोरेज फैसिलिटी भी वेयर होलसेलर ही प्रोवाइड करेगा, और जो भी गुड्स को स्टोर करना है वो भी किसके थ्रू होगा, होलसेलर को। तो ये सारी रिटेलर्स की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि गुड्स कैसे आएंगे और गुड्स कहाँ पे रखे जाएंगे। ओके, सो these all are services, these some services are which is provided by the wholesaler to the retailer. Next one is specialized knowledge. Wholesaler has direct link with the manufacturer, so he comes to know about the latest technology used by the manufacturer and also about the new product produced. Therefore he informed the retailer about the new techniques, new products and their use to the retailer. A wholesaler keeps updating the knowledge of the retailer. Okay, so specialized knowledge. Wholesaler has direct link with the manufacturer, ठीक है, होलसेलर का क्या होता है, डायरेक्ट लिंक होता है किसके साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ। सो ही कम्स टू नो अबाउट दी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू क्या होता है कि होलसेलर को बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है, विच इज़ पता चलती है, विच इज़ यूज बाय द मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर यूज़ कर रहा है, एंड ऑल्सो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस, की उसके बारे में भी जानते हैं कि कौन से न्यू प्रोडक्ट क्या हुए हैं, वो प्रोड्यूस हुए हैं। देयरफॉर ही इन्फॉर्म द रिटेलर अबाउट द न्यू टेक्निक्स। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर होलसेलर को पता होगी, वो क्या करेगा, रिटेलर को ये सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि अब ऐसी न्यू टेक्निक आ गई है, अब ऐसे प्रोडक्शन होता है, न्यू प्रोडक्ट्स आ गए हैं, मतलब अब कोई और डिफरेंट टाइप का चॉकलेट आ गई है, डिफरेंट टाइप का शैम्पू आ गया है, या डिफरेंट टाइप के कोई एसेंशियल गुड्स आ गए हैं। ब्रेड में भी अब डिफरेंट काइंड के मल्टीग्रेन्स ब्रेड आ गए हैं। पहले क्या था, एक आटा और उसका वाइट फ्लोर का ही मिलता था, अब क्या है, मल्टीग्रेन्स भी आ गए। ये सारी इन्फॉर्मेशन रिटेलर को कौन देगा, होलसेलर देगा। और होलसेलर को ये सारी इन्फॉर्मेशन किससे मिलेगी, मैन्युफैक्चरर से। अब यही सारी इन्फॉर्मेशन जो रिटेलर है वो किसको देगा, कस्टमर को। वो बताएगा कि नहीं, अब तो एक नया टाइप का भी ब्रेड आ गया है जिसमें मल्टीग्रेन्स हैं, तो लोग क्या करेंगे, कस्टमर, एज वी आर ऑल आर कस्टमर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, नहीं मुझे अब वही वाला मल्टीग्रेन्स वाला ये ब्रेड खाना है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक थ्रू चेन ये कंटिन्यू रहती है। मैन्युफैक्चरर होलसेलर को प्रोवाइड करेगा, होलसेलर रिटेलर को, एंड रिटेलर कंज्यूमर को। ओके, so he informed the retailer about the new techniques, जो techniques है, new product and their use
टू द रिटेलर, ठीक है, उसके यूज़ को कैसे, उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन होलसेलर रिटेलर को देता है। एंड होलसेलर कीप अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ द रिटेलर, और जो होलसेलर है वो जो नॉलेज है रिटेलर का वो उसको अपडेट करता रहता है कि हाँ अब ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, अब ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है, अब ये टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। ओके, दीज ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ provided by the wholesaler to the retailer. Okay, next one is marketing support.